See that you get it correct in the first attempt, students. Yes, anyone? Come on, Dhruv, Kashish, Rashi, Shyam, Tejas, Yash. Students, shall I solve it for you all? Sir, 2 minutes. Okay.
Hey students, it seems that I need to solve it for you all. Now listen carefully, Yes, students. sir. Why like that? Such an easy question it was. Students, whether you do this or whether you do this, please students, in both the cases, it's integration of, if you recollect, I'd give you the formula f of x into dx, g of x into dx, plus or minus h of x into dx. कितने सारे terms हैं? So what exactly I did? I just separated them. Students, मैंने सबको separate कर दिया in that case. I have separated them. So यहाँ पे भी students, we are doing in the same manner, students. We are doing in the same manner. I'm just going to use that particular formula in that case. And the formula what we consider will equal to what? It's integration of, students, integration of x raised to n into dx is equal to x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus constant of integration. That's all. This is what is your mathematical operation to be used. Well, what kind of science it is? It's not a rocket science or rocket maths. Now let us solve this. When you're trying to solve this, students, what do? You try to separate each and every term. So now you go for integration of x raised to 5 into dx plus integration of 2 into 2 by x into dx. So x square into dx. Minus sign will be outside, integration of 1 by x into dx. So it's dx by x. Minus sign will be outside, integration of 4 into dx by root of x plus integration of 10 into dx. Still, if you can't get it, that becomes a problem. Now, when I take this, students, I can use this as a mathematical relation. यहाँ पे 2 upon x square है, students. I'll rewrite this in form of integration only. X raised to 5 into dx plus. Students, can I put this as 2 into x raised to minus 2 into dx? Because this formula holds true. Can anyone tell me x raised to n into dx is x raised to n plus 1 upon n plus 1. This formula holds true for what value of n? All Everything values except except minus one. Yes, it holds true for all value except n equal to minus 1. यहाँ पे -2 है तो ये फॉर्मूला आएगा ना यहाँ पे देखो x is to -1 हो जाएगा और ये तुम्हें पता है इसका तो ln x ही आएगा. Yesterday only we did it. अभी कल दोपहर का कल around 12 o'clock 11 o'clock का lectures. Listen carefully. Yesterday we took a lecture and today I'm asking just after another 10 hours or after another 8 hours again 12 hours 12 to 14 hours and see things are forgotten. So if such kind of a memory is going to be, how exactly things are going to last? Today what you're doing it should last till 2023. 2023 तक याद रहना चाहिए. कहाँ से याद रहेगा जब एक कल का चीज आज भूल जाते हो तो? This will be minus integration of 4 root x अगर मैं ऊपर लेता तो कहने से x raised to minus half into dx हो जाएगा plus integration of 10 into dx. Now students, is it clear to all of you all? Now students, is it clear? yes, sir. Now can you solve it further? Can you solve it further? Now I'm just going to erase the problem itself only. Okay, I'm putting down the solution over here. Okay. Now see, integration of x raised to 5 into dx. Students, what's the formula? X raised to n plus 1 upon n plus 1. So what's the answer of this? Equal to x raised to n plus 1. So x raised to 6 upon 6 plus, can I remove 2 outside? Yes. X raised to minus 2 into dx. So x raised to n plus 1. Minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1. So minus 2 plus 1 will be minus 1. Minus 2 plus 1 is again minus 1. Students, did you understand this part, formula? क्या ये clear हुआ सबको? हाँ सर. Please, I'm not teaching only one student. I'm not taking private tuition. Yes, Students, sir, मैं clear. private tuition नहीं दे रहा हूँ. Are you getting it? This is for everybody. And there are some students who are absent yesterday.
Janvi, why you were absent yesterday? Janvi, can you unmute? See, the way they reply in that case, as if they're doing a mehrbani onto us. She was traveling. Okay, good. But at least you can unmute and put forward. तो ट्रैवलिंग के टाइम पे भी तो अगर थोड़ा सा नेटवर्क आता है तो तुम सुन सकते थे. ओके, डजंट मैटर. अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली. स्टूडेंट्स अभी मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये जो लेवल ऑफ स्टडीज है ना, प्लीज डोंट टेक इट एज अ जोक. ये जो लेवल ऑफ स्टडीज है, इट्स नॉट, तुम्हें पता होना चाहिए कि अभी ये 10वीं या 8वीं या 9वीं की पढ़ाई नहीं है. ट्राई टू चेंज योर अप्रोच टुवर्ड्स फिजिक्स स्पेशली. स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, हमने x is to minus 2 means आप टेकन x is to n plus 1 upon n plus 1. So minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1. ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा. Integration of dx upon x. Students, what is integration of dx upon x? lnx. ये किसका आवाज आया? कशिश का आवाज आया. After so long time, Kashish, you entered late. No, sir. Okay. अब यहाँ पे integration of 4 of x is to minus half. Can I take minus 4 outside? Yes. So what is integration of x is to minus half into dx? Sir, x raised to minus half plus 1 upon minus half plus 1. Very good. तुम हो तो यहाँ पे आंसर्स मिलेंगे, है ना? तो x is to minus half plus 1. Friends, x is to minus half plus 1. Minus half plus 1 का मतलब क्या होगा? Plus half upon minus half plus 1 will be what? Again half. Plus 10 is constant, cannot be integrated. Integration of dx is what? X. क्या ये clear हुआ students? Is this part clear? Yes, sir. Yes, sir. Now suppose if I want to write down the answer, I'm putting the final answer just below it. So what's the final answer, students? X is to 6 upon 6 plus into minus minus 2. X is to minus 1 upon x minus ln x. And students, when I start solving it, I'll get a constant of integration यहाँ पे b plus c1, c2, c3. I'll get it in that case. 4 2s are 8. X is to half. अगर मैं इसको लेता हूँ तो ये root x हो जाएगा plus 10x. And at the end of it, I can write on plus c as constant of integration. क्या ये आंसर क्लियर हुआ स्टूडेंट्स सबको? Students, is it clear? अरे हाँ या ना तो बोलो. Yes, समझ sir. में? हाँ तो इतना क्या टाइम लगा रहा? I don't get it. And please now students who are drowsy and sleeping in the morning hours, प्रॉब्लम पहले लिखा हुआ तो वो चला गया. स्टूडेंट्स प्रॉब्लम लिखा हुआ यानी अभी तुम ध्यान से देखना कैसे कॉपी करना है. प्रॉब्लम चलाएगा, उसके बाद वाला एक फॉर्मूला डालना था, फिर ये फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप और ये फोर्थ स्टेप है. एग्रीड? प्लीज डोंट कॉपी एनी हाउ, डोंट राइट एनीथिंग इनकरेक्ट, नहीं तो तुम शुरू करोगे यहाँ से. ऐसे भी कुछ होंगे absent minded students who don't know where to start from and what to do. Please keep your modules open. If the modules is not handy to you all, if you have a PDF, try to look into the PDF also. We are doing from page number 33, which I made it very clear in chapter questions. Okay, now can anybody give an answer for this one? Next one, students.
Yes, sir. Kashish done? Yes, sir. Anybody else who wants to answer other than Kashish? Okay, nobody wants to answer. Kashish, you only answer. Chalo, carry on. क्या करोगे first step? So first step, we should take integration of different terms. मतलब इन लोग को different करके उनका integration करना. Very good. So integration of 7 into e raised to x into dx plus integration of 4 into sin x into dx. Minus sign कहाँ पे लिखूं मैं? बाहर. बाहर आएगा. Integration of 9 into dx upon x cube plus integration of a into dx. यानी ये कौन सा मेथड यूज किया? कहने से u plus v मेथड प्लस माइनस v मेथड. हाँ, f of x g of x का मेथड है ना. Yes, sir. हाँ. यहाँ पे क्या रेशियो और कोशेंट रूल आता है इंटीग्रेशन में? No, sir. ओके. नाउ हाउ डू यू मूव फर्दर? अभी कैसे करोगे? Sir, now differentiating 7 e raised to x into integrating. मामा को बोला, मैं बोलता हूँ कशिश को चाय का कप दो पहले, या जल्दी से अगर दूध पी रहे तो दूध पियो गरम गरम. नहीं जाग सर, जाओ. इतने टाइम से जाग जाओ. डिफरेंशिएशन करते करते मुंह में डिफरेंशिएशन ही आता है. हाँ, देखो स्टूडेंट, सी द वे उसने इतना प्रैक्टिस किया डिफरेंशिएशन का, शी इज गेटिंग डिफरेंशिएशन ओनली. ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट. शी वाज सपोज्ड टू गिव अ करेक्ट उसका आंसर. उसको पता है क्या करना है, जस्ट मुंह से निकल गया डिफरेंट. ओके, सो 7 क्या है? 7 कांस्टेंट है. यस सर. ओके, सो 7 कांस्टेंट है. तभी देखो इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x into dx होगा, प्लस यहाँ पे 4 कांस्टेंट है. इंटीग्रेशन ऑफ, प्लीज स्टूडेंट्स, आई एम डूइंग ईच एंड एवरी स्टेप. मैं डायरेक्टली नहीं लिख रहा हूँ. इवन कशिश इज नॉट डूइंग इट डायरेक्टली. आई गेटिंग इट. लेकिन जैसे जैसे तुम ट्रेंड होते जाओगे, as you go on knowing the formulas properly, as you know the proper approach of relations in mathematics formulas, then you can do it directly. लेकिन डायरेक्टली करने में स्टूडेंट्स गलत आंसर मत लेके आना. -9. इसको कैसे लिखो? dx upon x cube को. Shall I keep it in the same manner? No sir, you should write it like 9 into x raised to -3. X raised to Okay. -3. X raised to minus into dx, and 9 will be outside. Yes sir. Okay, plus integration of e raised to dx. Why x raised to -3 into dx? क्यों ऐसे? Janvi wants to ask. ऐसे क्यों सर लिखा क्वोशंट तुमने? रूल अप्लाई नहीं होता है. Very good. See, Yash, this must be Yash. Yes, Yash is the one. Okay, carry on. बताओ अभी आगे कैसे करोगे? So now the integration of ex is ex, keeping 7 constant, so 7ex. Okay, will I get constant of integration over here? Yes sir, in every In single every part of it. plus C1 plus, लेकिन वो हम पीछे लिख देते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने C लिखा था ना, वैसे पीछे सब कांस्टेंट्स को ऐड कर सकते. Okay, यहाँ पे +4. What is integration of sin x into dx? Cos x. एक पंच मारना सर चाहिए. माइनस कौन सा? Minus cos x. क्या घाई किया, घाई किया. कशिश को चाहिए कि एक ऐसा पंच चाहिए, तभी जाके वो सही आंसर देती है. माइनस cos x. घाई मत करो ना स्टूडेंट्स. अभी ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, अगर तुम sin x को डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें प्लस cos x मिलता है. अगर sin x को इंटीग्रेट करोगे तो माइनस cos x होगा. समझ में आ रहा है? अगर तुम cos x को डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें माइनस साइन मिलेगा. cos x को इंटीग्रेट करोगे तो प्लस साइन. दे आर ऑपोजिट. आई गेटिंग इट? सो इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. ये ध्यान में रखना. ये प्रूव किया हम लोग ने कल लास्ट. और जो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में एब्सेंट थे, I don't know what exactly is with them. Hope that they must have gone through the video lectures. If they haven't gone through the video lectures, it's their problem then. You need to know whenever you sit for the next lecture, students, your preceding lectures should be up to the mark.
अगर तुम मूवी देखने का प्लान करते हो और थिएटर में जाते हो और 15-20 मिनट लेट हो जाते हो, तो तुम्हारे घर वालों को या तुम्हारे फ्रेंड्स को 15 मिनट की स्टोरी नहीं पूछ रहे क्या हुआ था? You do ask what has happened in the movie. When you don't want to miss out for the 15-20 minutes also, over here you missed out the entire session. That was just a cost of 250 rupees. This is thousands of rupees का lectures. Please students, ये सब समझो. पढ़ाई के मामले में don't be that much negligent. थोड़ा सा sincerity रखो and try to be much more focused into studies. Please, without any reasons, I'm telling you very clearly, don't miss out lectures. Untoward agar hota hai, for example, just now somebody had fever. It will say Abdishi said it, somebody said it, fever was there. So that's a genuine reason. Chalo tum kar hi nahi sakte ho, that is genuine reason. Even the other girl who was traveling, she informed sir, लेकिन अगर traveling में भी तुम्हें अगर suppose network मिलता है तो सिर्फ तुम्हें headphone से सुनना है और देखना है, कोई problem नहीं. अगर है network तो कोई problem नहीं. अगर नहीं है नेटवर्क तो फाइन इनफ, डजंट मैटर कि चलो एक जेन्युइन रीजन है. लेकिन avoid all these things students during studies now in the process of studies कि फिर मिस आउट होगा तो इट्स ऑफ नो यूज. नाउ कैन यू टेल मी इंटीग्रेशन ऑफ x to -3 into dx क्या करोगे यहाँ पे? Sir, the formula of x raised to n plus 1 upon n plus 1. So -3 plus 1 upon Minus 3 plus 1. plus integration of e into dx. Ex. Ex, why integration of e? What is integration of e? What is e? Sir, E is constant, no? Yes. And then integrate, इसको कैसे लिखोगे? ये actually e बाहर आएगा. ये actually e is constant only. And integration of dx will be x plus constant of integration. ये ध्यान रखना students. ये जो ex है ना तो plus e and then integration of dx you can consider. Now your final answer will be what? 7 e raised to x plus into minus 4 cos x. -3 plus 1 is -2. -3 plus 1 is -2. माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 9/2 x रेज टू -3 plus 1 क्या होगा? x रेज टू -2 नीचे आएगा तो x square X square. plus ex plus c. That's your final answer. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? सर ये 9/2x स्क्वायर कैसे लाए? देखो ना x रेज टू ये -3 plus 2 कितना होगा? -10 -2 माइनस इंटू माइनस प्लस. तो +2 आ गया ना. ओके और हाँ. x रेज टू -3 plus 1 is -2. नेगेटिव पावर हाँ नेगेटिव सर. पावर पॉजिटिव में बना दिया. ओके लॉज ऑफ. सर. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू ऑल? Yes, sir. Okay. Now students, I want you to solve page number, ये अभी अच्छे questions है students, please. Page number 38. Everybody please have a look into your module. Page number 38.
page number 38. Section 3 from 24 to 27 right now. Sir, section 3 or section 4? ए, oh, very sorry. Section 3 तो हो differentiation का गया ना? अरे हाँ, thank you कशिश, तू कितना smart है. Okay, fine. Okay, students, then I wanted to solve from problem number, section 4, problem number 28 to 32. (28 to 32) right now. Section 4, page number 38. All of you. And please, अभी सारे questions correct आने चाहिए students. Yes, anyone has completed all questions?
These questions are put for those students who are not opening their books, who are not opening their PDF, and they have reasons. I'm not having PDF. I haven't collected the book. I have only one device and my PDF in the same device. जिनके ये सब reasons है उनके लिए लिखा है. So please try to solve it fast, no? Yes, anybody? Can I solve it for you all students? Yes, shall I solve it for you all students? So second one, sorry, 29th one. Very good. Very good. Okay, students, let us go for all of them, students. अभी देखो students, सारे में है तुम्हारा फॉर्मूला क्या है? तुम्हारा बेसिक फॉर्मूला तुम्हें क्या ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स? फॉर्मूला तुम्हारा क्या याद रखना है स्टूडेंट्स? प्लीज मत भूलो ना. इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n इंटू dx क्या है फॉर्मूला? x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन. ये तुम्हारा फॉर्मूला है. सारा में वही तो यूज करना है. क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट. So can I say this is equal to integration of x raised to half into dx. So x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus constant of integration. So what's the answer? X raised to 3 by 2 upon 3 by 2 plus c. So can I say 2 by 3 root of x cube plus c? क्या ये clear हुआ?
स्टूडेंट्स क्या ये क्लियर हुआ? सर लास्ट में क्या किया आपने? 2/3। ये समझ में आया? एक्स रेस टू हाफ प्लस यानी 3/2 अपॉन ये 3/2 था ना, हाँ सर। बस ये 2 को ऊपर ले लिया, 3 को नीचे ले लिया, रेशियोज। और ये एक्स रेस टू 3/2 को नीचे ले लिया, ये तो रूट है, सॉरी ये तो रूट है, तो ये होगा यहाँ पे रूट ऑफ एक्स क्यूब, ये न्यूमरेटर में ही आएगा, सबट्रैक्शन साइन नहीं है, ये वाला आंसर है स्टूडेंट्स। ये देखो यस स्टूडेंट्स, सर। ये जो 1/2 है दैट इज रूट एंड एक्स क्यूब प्लस सी। ओके, अगर ये नेगेटिव पावर होता तो नीचे जाता, लेकिन ये पॉजिटिव है, लेकिन 2/3 रूट ऑफ एक्स क्यूब, दिस बिकम्स योर आंसर। क्या ये क्लियर हुआ सबको स्टूडेंट्स? इज द फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू ऑल? Yes, sir. अभी सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन में देखो ये mth रूट ऑफ n है। सबसे पहले we'll try to write on integration of mth root of x raised to n यानी x raised to n by n। Students, mth root का मतलब 1 by m into dx। Now your simple formula, what is integration of x raised to something into dx? So it will be x raised to plus 1 upon n by m plus 1 plus constant of integration। क्या ये clear हुआ students? Is this clear? So what is square root of x? X raised to half. What is cube root of x? X raised to 1/3. What is fifth root of x square? X raised to 2/5. वही तो मैंने यहाँ पे किया, n raised to m। Students, is it getting clear to all of you all? यस सर। Yes, sir. तुम solve करो तो what will be? It's x raised to what exactly? ये होगा students n plus m, the whole upon m। यहाँ पे solve करो तो n plus m upon m plus constant of integration, तो ये m तुम्हारा ऊपर चला जाएगा, x raised to n plus m upon m, the whole upon n plus m। That's your answer। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Students, is it clear? Yes, sir. Second answer? Okay, the third one, integration of dx is equal to, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? Integration of x raised to -2 into dx, take it into negative power, doesn't matter। Now use the formula x raised to n into dx। So what's the formula? X raised to n plus 1 upon n plus 1 plus constant of integration, this becomes x raised to -1 upon -1, तो कहने से माइनस तो आई गई, x raised to -1 कहने से 1/x plus c। क्या ये क्लियर हुआ? ये माइनस n यहाँ पे आया, x raised to -1 को 1/x लिख दे दिया। Agreed? यस सर। No, sir. That is Please क्या? repeat once again. You want me to repeat, Sakshi? Yes, sir. Which part is not clear, the second step or the third step? Second. Okay, now see, this is the formula x raised to n plus 1 upon n plus 2। अब ये जो है -2 plus 1 is -1, -2 plus 1 is -1। Now if I happen to move from here, ये माइनस साइन यहाँ पे आएगा ना, ये तो इक्वल टू साइन है, ये इक्वल टू साइन है, this becomes your minus over here and x raised to -1 will be 1/x। Students, ये सब लॉज ऑफ इंडाइसिस है, तो अगर मैंने 1 upon -5 लिखा ना, उसका मतलब ये -1/5 ही है। ये सब अभी मैं क्या पढ़ाऊँ तुम लोगों को? ये सब 7th और 8th में स्टूडेंट्स को बताया जाता है। अगर सपोज मैंने x रेज टू -2 दिया है तो 1/x² लिखते हैं स्टूडेंट्स, अगर नेगेटिव पावर में होता है तो। अगर अगर मैंने लिखा है रूट ऑफ सॉरी
क्यूब रूट ऑफ x रेज टू 5 लिखा है, तो उसको मैं लिखूंगा x रेज टू 5 द होल रेज टू 1/3 यानी x रेज टू 5/3. दिस इज हाउ यू हैव टू कंसीडर. अभी सपोज मैंने यहाँ पे लिखा x रेज टू -1 अपॉन -5, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा? मैं माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा, 5 तो नीचे ही है, x रेज टू -1 व्हाट इज x रेज टू, जैसे ये होगा तो पॉजिटिव पावर में करना तो 1/x आएगा. These are all basics. That's what you should know it. Yeah. Is it clear, Sakshi? Yes, sir. Okay. 31st and 32nd. Anybody can tell me how to go about 31st and 32nd, students? Anybody? Sir, we can take 2 root x into negative. 2 root x कहाँ से नेगेटिव है? x is 2, हाँ 2 तो 1/2 तो कांस्टेंट है ना आशीष. Okay, sir, मैंने पूरा टर्म ही ले लिया उसमें. तो क्यों ऐसे करते हो यार? क्यों? 2 is a numerical value. क्यों नहीं समझते हो? कांस्टेंट टर्म्स का मतलब क्या होना चाहिए? क्या मैंने यहाँ पे 2 raised to x लिखा है? नहीं ना, इट्स सिंपली 2. अभी सॉल्व करके देखो क्या आंसर आ रहा है. Please, everybody solve 31st and 32nd. One who finishes it, raise your hand. Fast. Yes, who's this? Root x plus c. क्या बात है. Very good. Root x plus c. Absolutely correct. देखा? Come on, the rest of them. Sir, even I got Okay, what is the answer? You got it? root x plus c. Very good. कैसे करोगे बताओ? सर 1/2 कांस्टेंट है, रूट एक्स डिनोमिनेटर में तो x रेज टू -1/2 हो जाएगा. And then we'll use the formula keeping 1 upon x raised to -1/2 plus 1 upon -1/2 plus 1. And constant of integration. Absolutely correct. तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ये देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे Half 1 will by get 2. cancelled. यस, नहीं ये -1/2 plus 1 भी +1/2, तो हाफ की जगह पे यहाँ पे 2 आ जाएगा वो. और ये क्या होगा? x raised to half, which is root x. The answer will be root x plus c. Absolutely correct. 32nd. Come on fast. The most intelligent person can answer. Yes, anybody?
Come on, Anju, Dhruv, Dilsha, why you are late today in the lectures? Were you present, Dilsha? Why you are late? Yeah, Dilsha. Why you were late? So I have network issues and tried to link it up, but it was not working. Okay, fine. What's the next time what happened? And Mayank, were you present yesterday, Mayank? Mayank, you were absent, it seems, is it? Very good. People who remain absent, they don't unmute themselves. Very rarely they unmute. He's texting me, yes sir, absent. Enjoy your life. और देखो कितना स्ट्रगल करते होंगे प्रॉब्लम्स के लिए. Yes, anyone who can give an answer, 30 seconds. Friends, यहाँ पे देखो. Sir, u minus u square plus c. तो इतना क्यों टाइम लगा? देखो बहुत इजी. इसको कैसे करोगे? चलो बताओ अभी फास्ट. सर वो पहले तो 1 को इंटीग्रेट करेंगे फिर 2u को इंटीग्रेट करेंगे. 1 into du 1 पहले हाँ 1 into du. is du. ये Yes. माइनस साइन किधर आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 2 into u into du. You u. have to multiply du with both of them. तुम्हारा f of x और g of x का फॉर्मूला आ गया. Yes sir. What is integration of du, students? What is integration of du? u. U. Integration of dx is x. Integration of d is e. Integration of dm is m. I told you that. That is u. Minus sign 2 outside. 2 is constant. What is integration of u into du? u square. By 2 plus constant of integration. Agreed? Students, ये x raised to n plus 1 upon n plus 1. 2 and 2 will get cancelled. So what's your answer? U minus u square plus c. क्या ये clear हुआ, students? Students, is it clear? Yes sir. Okay. Friends, what is integration of e raised to minus x into dx? Fast. Integration of e raised to minus x. minus e raised to minus x. Very good. Minus e raised to minus x plus constant of integration. Students, ये कल फॉर्मूला बता दे कि नहीं बताया था? हाँ यश? बताया सर. यस, यानी देखो बहुत कम स्टूडेंट्स उसको याद रखते हैं. स्टूडेंट्स ऐसे मत करो. डोंट डू लाइक दैट. Are you getting it? सर मुझे सेकंड लास्ट स्टेप वाईफाई स्लो हो गया था तो सुना ही नहीं आपने क्या क्या बोला. यहाँ पे हाँ सर. ये तो ये मैंने डी ये 2 हाँ कांस्टेंट आ गया और यहाँ पे x raised to n into dx का फॉर्मूला ली. ओके सर. So that's x raised to n plus 1 upon n plus. Can I erase this, students? अभी मैं erase करूँ? यस सर. Okay.
Since I wanted to solve now, page number 40. Please, everybody have a look at page number 40. Question number 16, 1-6. Come on, solve fast. Page number 4040. Question number 1-6. And then page number 41, students. Solve question number 22. I repeat. Since I'm putting it on the board, page number 40, question number 16, integration of fifth root of x into dx. Agreed? Next, page number 41, question number 22, integration of 1 minus x root of x into dx. Solve these two questions right now, students. Yes, anyone has done it?
Yes, anybody? Shall I solve it for you all students again, this one? Since why so much time you are taking it on us on that? Since ये जो fifth root of x है, so can I say it will be integration of x raised to 1 by 5 into dx? क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? I don't think that. ये fifth root of x है. So now what's the formula? X raised to n into dx will be what? X raised to n plus 1 upon n plus 1. So what's the answer? X raised to 1 plus 5 upon 5 यानी 6 upon 5. Denominator भी क्या होगा? 6 upon 5. इसको तुम कैसे लिखोगे? 5 by 6. ये 5 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे है. X raised to 6 by 5 plus constant of integration. हाँ स्टूडेंट्स, अभी क्लियर हुआ? हाँ सर। तो why don't you all get it? I don't understand that. अब ये वाला भी था तो कैसे करना था? ये दोनों को मल्टीप्लाई करना था. इंटीग्रेशन ऑफ 1 minus x. तो कैन आई टेक दिस एज रूट ऑफ x into dx plus into minus minus x root of x into dx. It's like that. ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा. Now can I use f of x g of x? Yes. तो अगर यहाँ अभी तुम अटकोगे ऐसे प्रॉब्लम्स में तो it is going to be a problem for you all students. Please, you shouldn't try to block yourself now over here. यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ x raised to dx यानी x raised to half into dx होगा, माइनस साइन बाहर आएगा. इंटीग्रेशन ऑफ x raised to 1 ये है into x raised to half into dx होगा. Now यहाँ पे x raised to n, तो x raised to n plus 1 upon n plus 1. कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में पीछे लिख दूंगा माइनस ये क्या है? अभी भी इंटीग्रेशन ऑफ x raised to 1 plus half यानी 3/2 होगा. फ्रेंड्स ये लॉज ऑफ इंडाइसेस है. a raised to m into a raised to n is equal what? a raised to m plus n. स्टूडेंट्स ये सारे लॉज ऑफ इंडाइसेस अभी ध्यान में रखना स्टूडेंट्स. मैं बता देता हूँ. a raised to m into a raised to n is a raised to m plus n. ये ध्यान में रखना पहला वाला. एग्रीड? अगर किसी ने बोला व्हाट इज a raised to m upon a raised to n, आंसर इज a raised to m minus n. Agreed? A raised to m, यस सर। the whole raised to n is a raised to m into n. If I say a into b, the whole raised to m is a raised to m into b raised to m. Am I getting it? Is this clear? यस सर। Now suppose if I happen to go for a raised to m is 1 upon a raised to minus m, or a raised to minus m is 1 upon a raised to m.
And the last one, any number raised to the power of 0 is always equal to 1. तो ये सारे लॉज ऑफ इंडाइसिस है, क्यों भूलते हो तुम लोग? ये स्कूल लेवल में किया है कि नहीं किया स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ इंडाइसिस? तो यहाँ पे क्यों गलती कर रहे हो तुम लोग? जैसे प्रॉब्लम देखा नहीं कि तुम ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा टफ प्रॉब्लम आ गया है। स्टूडेंट्स x is to 1 into x is to 3 by 2 into dx आ गया। अब देखो इसको x is to क्या होगा, 1 by 2 plus 1, 1 plus हाफ कितना होगा, ये तो 3 by 2 ही होगा। ये भी क्या है, 3 by 2 माइनस x raised to 3 by 2 plus 1 अपॉन 3 by 2 plus 1, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पीछे लिखते हैं। नाउ इफ आई वांट टू राइट ऑन दिस, कैसे लिखूंगा मैं, ध्यान से देखना भैया। x raised to 3 by 2 स्टूडेंट्स ये रूट है, तो कैन आई पुट रूट ऑफ x क्यूब। हाँ स्टूडेंट्स, x raised to 3 by 2 को कैन आई पुट रूट ऑफ x क्यूब। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 by 3 माइनस 3 by 2 plus 1 यानी 3 2 जा 3 plus 2 5, 5 by 2 होगा, तो कहने से दिस इज 2 by 5। ये क्या होगा, x raised to 3 by 2 plus 1, तो x raised to what, 5 by 2. कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको तुम वापस बताओगे तो कैसे लिखोगे तुम, 2 रूट ऑफ x क्यूब by 3 माइनस 2 by 5, ये क्या होगा, रूट ऑफ x raised to 5 प्लस। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Clear. क्यों कंफ्यूजन हो रहा था, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। Is this clear to all of you all? क्या मैं इरेज कर सकता हूँ अभी? Students, can I erase it? Yes, sir. Sir. Now, students, enough of problems we have done it for indefinite integrals, जहाँ पे पीछे constant of integration आ रहा था। अभी हम जाते हैं two different ways of approach of solving questions. Students, अभी हम जाते हैं एक by method of substitution, and the second one is definite integrals. That will be the end of the chapter. Okay. तो अभी हम जाते हैं by the method of substitution, and then we'll go for definite integrals. अब ये ध्यान में रखना students, how to go about it. Okay. सब्स्टिट्यूशन का मेथड स्टूडेंट्स बहुत बहुत लोगों को थोड़ा सा ट्रिकी लगता है। ओके, नाउ व्हाई डू वी गो फॉर सब्स्टिट्यूशन स्टूडेंट्स? जहां पे तुम्हारे डायरेक्ट फॉर्मूलाज जब भी एप्लीकेबल नहीं होते इंटीग्रेशन में, okay, where you don't have the product rule, when you don't have the quotient rule, and you have certain higher degrees along with smaller degrees, then it becomes necessary for one to use substitution method. यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड में स्टूडेंट्स पहले डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, उसके बाद में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। आई रिपीट, सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो 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 इक्वेशन को तुम सब्स्टिट्यूट करते हो उसको पहले डिफरेंशिएट करो और फिर उसी एक्सप्रेशन को वापस अपने मेन प्रॉब्लम में इंट्रोड्यूस करो। ऑल द स्टूडेंट्स हु आर इनटू द लेक्चर्स, प्लीज ध्यान से सुनना। कहाँ पे भी तुम्हें नहीं समझ में आता हो तो प्लीज आस्क मी अगेन, लेकिन गेट इट क्लियर। Let me go for a simple question, students. ध्यान से सुनना। Suppose अगर मैंने दिया students, I want to go for integration of, that is integration. You can put down the heading as by method of substitution. Agreed?
Now, for example, if I give you students integration of x square root of x cube plus 1 into dx. सपोज अगर मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन तुम्हें दे दिया, अभी तुम क्या कर सकते हो इसका? चलो हम एक नॉर्मल मेथड से जाते हैं, जो हमने पढ़ा है वही हम हाथ में लेते हैं पहले। तो कोई भी स्टूडेंट बोले सर आपने ऐसा इक्वेशन दिया, उसका मतलब ये तो एक्स स्क्वायर तो है ही, आपने रूट लिखा है नहीं, ये एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू डी इंटू रेज़ टू द पावर ऑफ हाफ आ जाएगा क्योंकि रूट में है। फिर आपने लिखा dx है पीछे, यानी सर ये तो एक वेरिएबल होगा, ये दूसरा वेरिएबल होगा। अभी आपने u इंटू वी मेथड तो बोला नहीं है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, यानी देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे आने के बाद में वापस में ब्लॉक हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे आने के बाद में आई एम ब्लॉक्ड, आई एम नॉट एबल टू सॉल्व फर्दर क्योंकि u इंटू वी मेथड है ही नहीं। तो स्टूडेंट्स क्या करेगा? स्टूडेंट क्या करेगा? स्टूडेंट ये सोचेगा, ऐसा करते हैं ना सर, इसको हम इसके अंदर ले लेते हैं, यानी इसको मैं रूट के अंदर ले लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये भी सोचेगा, अगर मैंने इसको रूट के अंदर ले लिया तो ये रेज़ टू द पावर ऑफ 2 हो जाएगा, यानी रेज़ टू द पावर ऑफ 4 हो जाएगा। तो देखो ना, एक्स क्यूब इंटू एक्स रेज़ टू 4 प्लस ये अंदर चला जाएगा तो एक्स रेज़ टू 4 रहेगा और ये रूट तो रहेंगे। अभी ये देखो, ये क्या हुआ? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज़ टू 7 प्लस एक्स रेज़ टू 4 रेज़ टू द पावर ऑफ हाफ इंटू dx। क्या तुम इसको भी सॉल्व कर सकते हो? हाँ स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व कर सकते हो? तो बोले सर ऐसा तो कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं है लोअर स्टैंडर्ड में जहाँ पे a प्लस बी रेज़ टू द पावर ऑफ हाफ का फॉर्मूला कभी नहीं पढ़ा। हमने सर a प्लस बी तो होल स्क्वायर पढ़ा है, हमने a माइनस बी तो होल स्क्वायर पढ़ा है, हमने a प्लस बी तो होल क्यूब पढ़ा है, हमने a माइनस बी तो होल क्यूब पढ़ा है। अगर आप हमें a प्लस बी रेज़ टू द पावर ऑफ 4 दोगे तो वो भी हमें नहीं मालूम, लेकिन हम ऐसा लिख सकते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? What am I trying to tell you? Yes. So raise the power of half है, only one person is saying yes. What about the rest of them? Are you all there, students? Are you all there into the lectures? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Only few students are replying in that case. अगर तुम नहीं समझोगे तो it's going to be a hell. Why am I approaching for substitution? उसका reasons होना चाहिए ना। ऐसे थोड़ी कि मैं तुम्हारे पे डायरेक्टली थोप सकता हूँ कि इसको सब्स्टिट्यूशन करो, लेकिन कुछ रीजन तो एक स्टूडेंट ने ऐसा करके छोड़ दिया, अभी ब्लॉक हो गया, कुछ नहीं आता है। एक स्टूडेंट से अंदर लेके फिर उसने ऐसे लाया, फिर यहाँ पे भी अटक गए, रेज़ टू द पावर ऑफ हाफ का तो फॉर्मूला नहीं है, तभी जाके स्टूडेंट्स वी हैव टू गो फॉर सब्स्टिट्यूशन मेथड बिकॉज देयर इज नो सच फॉर्मूला ऑफ रेज़ टू द पावर ऑफ हाफ। और जैसे तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड करोगे तो अभी तो हाँ Sir, can you बोलो explain it again? what Can you explain it again? so what happened Anju? What happened Anju? Sir, can you explain it again? Why you didn't get it? No, sir. क्यों? a प्लस बी तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला तुम्हें मालूम है? Can you tell me the formula for a plus b the whole square, Anju? Anju, are you there? हेलो अंजू, a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला मालूम है? a माइनस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल क्यूब, a प्लस बी रेज़ टू द पावर ऑफ 4, इनके सबके फॉर्मूलाज तुम्हें पता होने चाहिए। तो वो वाले टर्म्स होंगे तो तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो, उसमें सब्स्टिट्यूशन की मेथड की जरूरत नहीं, वही मैंने लिखा था। लेकिन जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे रेज़ टू द पावर ऑफ हाफ आ रहा था। पर स्टूडेंट्स ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है तुम्हें a प्लस बी रेज़ टू द पावर ऑफ हाफ। समझ में आ रहा है अंजू? इसलिए हम सब्स्टिट्यूशन के लिए जा रहे हैं, इसलिए हम सब्स्टिट्यूशन के लिए जा रहे हैं, नहीं तो हमें सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं। अभी यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन के लिए जाओगे तो सब्स्टिट्यूट करोगे किसको? वो दूसरा प्रॉब्लम आ गया। ये तो पता चला कि ये प्रॉब्लम के लिए मुझे सब्स्टिट्यूशन, लेकिन अभी सब्स्टिट्यूशन करे किसको? तो स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन के टाइम पे ये ध्यान में रखना
जो भी हाईएस्ट डिग्री होगा ना, ट्राई टू टेक दैट एंड सब्स्टिट्यूट इट। ना स्टूडेंट्स मुझे पता ये x स्क्वायर है और ये x क्यूब है, x क्यूब प्लस 1, विच वन इज ऑफ हायर पावर? इज इट x स्क्वायर या x क्यूब? x cube plus 1. वेरी गुड। तो x क्यूब प्लस 1 तुम्हारा हायर पावर है। ओके, तो x क्यूब प्लस 1 अगर हायर पावर है स्टूडेंट्स, तो मैं क्या करूंगा, उसको सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो लेट x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू u, ये सब्स्टिट्यूशन होगा तुम्हारा। और जो x क्यूब के साथ में जो नंबर आता है उसको भी सब्स्टिट्यूट करो स्टूडेंट्स, नथिंग टू वरी अबाउट इट, उसको भी सब्स्टिट्यूट करो। ऐसे नहीं कि सिर्फ x क्यूब को करना है, ये पूरा एक टर्म हो गया स्टूडेंट्स। यानी इसकी जगह पे यहाँ पे प्रॉब्लम है, तुम इसको u लिख सकते हो, यू कैन राइट ऑन दिस इज u because you have substituted it. Now students, can I say differentiate both sides with respect to dx? तो क्या होगा, du by dx, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, du by dx। तो इसको डिफरेंशिएट करो स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएटिंग x क्यूब प्लस 1 by dx। अभी ये डिफरेंशिएशन हो रहा है, भूल मत जाना, जब इंटीग्रेशन करते हो तो डिफरेंशिएशन को भूलना नहीं, और डिफरेंशिएशन के टाइम पे इंटीग्रेशन को भूलना नहीं। ये है तुम्हारी लेवल ऑफ स्टडी स्टूडेंट्स। साइंस में आए हो, डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनना है, 11th स्टैंडर्ड की स्टडीज है, ये 8वीं 9वीं की स्टडीज नहीं है। तो अपने आप को नाउ यू हैव टू बी मेक इट मेंटली वेरी स्ट्रांग। इसलिए बोल रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स ऐसे ही बैठा अभी तुम्हारे में कल के दिन सिर्फ एक ही लेक्चर था स्टूडेंट्स, आया ना बताओ? हाँ स्टूडेंट्स, कल के दिन एक ही लेक्चर हाँ था, सर। पूरा दिन तुम्हारे हाथ में था। कितने जन यूटिलाइज करते हैं ये पूरा दिन? तुम्हें इतना पता है कि तुम्हारा शायद मैथ्स वीक होगा या फिजिक्स वीक होगा, तो क्यों नहीं मैं 9th और 10th के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके रखूं? क्यों नहीं मेरे साथ में अगर दो चैप्टर्स फिजिक्स के हो या 3 चैप्टर्स हो, उसके सारे प्रॉब्लम्स को वापस एक दफे सॉल्व करूं, भले सॉल्व प्रॉब्लम्स हो, सर ने किए उसको वापस देख के करूं। कौन कितनी मेहनत करता है? नहीं। पेरेंट्स ऑल्सो नॉट लुकिंग, पेरेंट्स भी नहीं देखते हैं कि बच्चे ने पूरा दिन क्या किया, सिर्फ 2 घंटे के लेक्चर्स के बाद में वो बैठा कितना टाइम, फिर तो नहीं आएगा ना। और फिर ब्लेम डालोगे कि ऑनलाइन स्टडीज है इसलिए नहीं हो रहा है। स्टूडेंट्स, ये तुम्हारे लिए अभी बोल रहा हूँ, अभी ये फायदा है। दिवाली 14 तक तुम्हारे हाथ में टाइम है, दिवाली के बाद में 14 तक, 14th ऑफ नवंबर। जैसे 14th ऑफ नवंबर खत्म हो गया ना, सी देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन विथ यू। जैसे ये खुलना शुरू हो जाएगा, तुम्हारे क्लासेस वगैरह ऑफलाइन होने शुरू हो जाएंगे, या को तुम्हारे नंबर ऑफ लेक्चर्स होंगे, फिर तुम ऑक्यूपाई होते जाओगे। तभी तुम्हारा रीजन और तुम्हारे पेरेंट्स का रीजन ये होगा, मेरा बच्चा बेचारा 5-6 घंटा कॉलेज में जाता है, फिर उसके बाद में फिर लेक्चर्स भी होते हैं, कहाँ से टाइम मिलता है हमारे बच्चों को। दिस इज हाउ द पेरेंट्स आर गोइंग टू से, एंड यू आर आल्सो गोइंग टू से अबाउट दैट। लेकिन आज के दिन अभी इतने सारे डेज गए हैं, नोबडी इज बॉदर्ड, nobody is bothered. They need to go through the previous part very properly. Let me become much more strong into it. Let me revise all the mathematical formulas of my lower standards, whether it's factorization, whether it's quadratic, whether it's polynomials, whether it's laws of indices. अरे कुछ नहीं तो टेबल्स लर्न करो ना 25 तक, वापस 30 तक। du by dx. Now if I happen to consider differentiating, so what exactly du by dx? Differentiating x cube will be 3x square. Y raised to y is equal to x raised to n, so n into x raised to what we consider as n minus 1. Now students, is it clear? Plus differentiating 1 into x, 1 differentiating 1 by dx, that is 0 because one constants cannot be integrated. Therefore, can I say du is equal to 3x square into dx? Therefore, can I say x square into dx is equal to du by 3? क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? इतना समझ में आया सबको? देखा, अभी हाँ भी नहीं बोलना है, ना भी Yes, नहीं sir. बोलना है। Yes, sir. मैं Yes. आगे जाऊंगा, फिर मैं आगे जाऊंगा इसको वजह से, सर आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस, कैन यू टेल मी अगेन? वैसे भी है सैंपल्स, अभी पूछ रहा हूं तो हाँ, अगर नहीं समझ में तो अभी का भी पूछो ना, क्लियर करो उसको।
Really, I want your parents to sit into the lectures. और पेरेंट्स को बोलूंगा कि सारे वीडियोस ऑन करके बैठो. Students, x square into dx is du by 3. Now please pay attention. अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? I'll rewrite the question. ये देखो, ये मेरा क्वेश्चन था, ये मेरा क्वेश्चन है. स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे देखो, मुझे x square into dx की वैल्यू मिली क्या है? du by 3. तो कहना चाहिए सर ये जो प्रॉब्लम था उसमें x square into dx साथ में आ सकता है. अरे हाँ सर, ये तो मल्टीप्लिकेशन नहीं है तीनों टर्म्स, है ना? तो कैन आई राइट ऑन दिस एज इंटीग्रेशन ऑफ x square into dx, students, can I write du by 3? Why not? लिख सकते हो. What about x cube? What about x cube plus 1? What about x cube plus 1? U. So can I write on this as root of u? अरे हाँ सर, ये तो प्रॉब्लम पूरा चेंज हो गया. ओ सर, अभी पता चला ये प्रॉब्लम इतना कॉम्प्लिकेटेड था सॉल्व करने के लिए, लेकिन आपने उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इजी बना दिया. यानी अभी मेरा क्वेश्चन क्या है? अभी मेरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ u into du by 3, यानी 1/3 बार आ जाएगा, u raised to half into du. अभी तो इजी हो गया स्टूडेंट्स. इंटीग्रेशन ऑफ x raised to n into dx, what's the formula? n raised to x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus constant of integration. ये होगा 1/3. Agreed. What is 1 plus half? What is 1 plus half? 3/2. 3/2. u half plus 1, ये भी कितना होगा? 3/2 plus constant of integration. 2 यहाँ पे चला जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा. u raised to 3/2. u raised to 3/2 तो कहने से root of u cube plus 3. root of u cube plus 3. But what is u? मेरा क्वेश्चन तो ये था, तो मेरा आंसर ये नहीं है. u को वापस रिसब्स्टिट्यूट करो. अभी देखो, ये u को मैं वापस यहाँ पे रिसब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरा क्वेश्चन इसमें था ना. मेरा फाइनल आंसर क्या होगा? 2/9 root of x cube plus 1 raised to power of 3 plus. क्या ये क्लियर हुआ? दिस इज द फाइनल आंसर. Is this clear to all of you students? स्टूडेंट्स, क्या ये क्लियर हुआ? बाद में पूछना नहीं मुझे कि सर मुझे नहीं आता है. अब भी पूछो क्या नहीं समझ में आ रहा है. Ask me right now. Any steps which you haven't followed it. Ask me right now. Yes, anyone? Any doubts into this? Sir, second last step, 2/9. यस, तेरा इसी में क्यों प्रॉब्लम हो रहा है यार? तो रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर कर, 8th का या 9th का रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर कर, तो इसी में हमेशा आपको कंफ्यूज हो रहा है. हाँ सर, पता नहीं क्यों ऐसा करता है यार? ये बेसिक्स है यार, ये लोअर स्टैंडर्ड्स का. ये तो अभी देखो मैं शांति से तुम्हें बता रहा हूँ. लेकिन अगर कोई दूसरा कोई टीचर होगा तो शायद भड़क भी जाए तुम लोगों के ऊपर. और जायज है ना, उनका भी तो मेंटल स्टेट होता है ना. यानी ये इट्स नॉट टू यू, आई एम सेइंग टू एवरीबॉडी. जहाँ पे तुम्हारा इसलिए बोला ना, अभी ये टाइम है तुम्हारे पास में, जब तुम यूटिलाइज नहीं कर रहे हो. इसको क्या है मानो, ये 1/3 है. ये देखो अपॉन 3/2 है, तो अपॉन 3/2 को कहना है 2/3. यस सर. तो 2 पर आ गया, 3 3 9 आ गया. इट्स लाइक दैट. एग्रीड. और ये मल्टीप्लिकेशन साइन था. अंडरस्टूड. थैंक यू सर. लेकिन मैम प्लीज ट्राई टू सॉल्व. हाँ, अगर कुछ होगा तो मैथ्स के फॉर्मूलाज वगैरह रिवाइज करो. और अभी प्लीज 14 नवंबर तक पूरा तुम्हारा फिजिक्स क्लियर करो और मैथ्स भी क्लियर करो स्टूडेंट्स. फिजिक्स में सारे अच्छे चैप्टर, सारे चैप्टर्स को एक दफे सारे सॉल्व एग्जांपल, सारे फॉर्मूलाज तरह करो, भले वो दूसरे चैप्टर्स के भी हो. मैथ्स के अंदर जितने भी फॉर्मूलाज है, जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स, उसको देखो. केमिस्ट्री में जितने भी वैलेंसी चार्ट है, सारे वैलेंसीज को स्ट्रॉन्ग बनाओ. कुछ केमिकल इक्वेशंस होंगे तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस ही करना सीखो.
ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जाके। ये 14 नवंबर तक, अभी ये अक्टूबर खत्म होने आया, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ 14 डेज का हाथ है तुम्हारे हाथ में। ये 14 डेज जितने यूटिलाइज किया, टू हेल विद दिवाली, दिवाला निकल जाएगा तुम लोगों का। दिवाली को मारो गोली, नहीं तो तुम्हारा दिवाला निकल जाएगा। I'm telling you वेरी क्लियरली। उसके बाद में 14 के बाद में जो जो सारे स्पीड में जाने वाला है, जो सारे पोर्शन के लिए आगे भागेंगे, in that time you will be into a mess. In that time you will say कि things are getting over now, I'm not able to catch up with it. So when you get time, try to work onto it and finish it off. Okay, students. Now, based on to this particular substitution method itself, only students, right now, I wanted to solve your 8th chapter exercise, page number 34. The answers in the page number 34. Both the questions are given to you, 1 and 2. I want to solve it right now. Question number 1, question number 2. Fast. In chapter exercise, page number 34. Question number 1, question number 2. And this question will be solved by Amira. Question number 1 will be solved by Amira, page number 34. Amira, I'm giving you only 3 minutes. Are you there, Amira? Yes, sir. Okay, I'm giving you only 3 minutes. Okay. And the next question, second one, I want Unesh. Unesh, are you there? Unesh, are you there? Unesh. This is the problem, see? आओ तुम लोग ऑफलाइन लेक्चर्स में आओ उनेश। नहीं तुम्हें क्लासरूम में खड़े होकर क्वेश्चंस पूछे सबको तो देख लेना, और एंटायर क्लास हर एक को क्वेश्चंस होगा, और वही लेक्चर्स तुम्हारे पेरेंट्स को लाइव दिखाए जाएंगे। I'll see to that. हर एक को क्वेश्चंस होगा, सामने कैमरा फिक्स करूंगा तुम्हारे टीपी भाटिया में, अगर तुम स्टूडेंट्स हो या तुम्हारा आरआर में होंगे तो वहाँ पे हम सीट के कैमरा बैठाऊंगा, तुम्हें सामने बैठाऊंगा, लेक्चर्स कंडक्ट होंगे वहाँ पे, और तुम्हारा लाइव Sir, can you repeat it the page number again? What are you saying? Page number, can you repeat it? Who's this? I've already said the page number. Actually, I misplaced it. Huh? I'm not able to hear you. क्या बोल रहे हो? Amira, you are the one? Yes, sir. तो तुम्हारे पास मॉड्यूल नहीं है? है. हाँ तो वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, I told you ना, पेज नंबर 34 इन चैप्टर। Okay. तुम्हें पता होना चाहिए ना हम कहाँ पे क्या कर रहे हैं। मेरा ऐसा मत करो ना, कहाँ तक हमारा कहाँ No. तक खत्म हुआ है। Sir, I was having book as it got misplaced by. Forget about it. I don't want to say anything. I don't want to say anything about all these things. I don't want to say anything. That is why na, keeping cameras off, nobody can see what is happening. Over here, parents make a great role at home. They have a great role to play at home. Okay.
Since this is page number Sir. 34 in chapter. Sir, Yes. sir, are trigonometry ratios bigger than the normal ratio or smaller? Why? Why you want to know about that now? हम trigonometry थोड़ी कर रहे हैं, हम integration कर रहे हैं ना. No, sir, like x sin x is bigger or 1 plus x square is bigger. सोचो. Because they're doing, I'm not getting. सोचो. इतना तो अगर सपोज मैंने x की वैल्यू सपोज इफ आई हैपन टू गो फॉर विद दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू. हेलो, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये 1 प्लस एक्स पे पूरा एक एंगल हो गया. ये डिग्रीज में होता है, ये डिग्री में. इतना ध्यान में रखो, जब भी x इनटू समथिंग दिया है तो ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है x, लेकिन तुम्हारा प्रोडक्ट रूल तो आता नहीं है यहाँ पे. ये तुम्हारा पूरा एक एंगल है विच इज मेजर्ड इन रेडियंस, और यहाँ पे तुम्हारा जो x है दैट इज हायर पावर, दिस इज स्मॉलर पावर. यस अमीरा, आर यू डन? आई एम वेटिंग फॉर यू. Now see, there were 25 students. Three to four students walked off. Amira, can you give an answer? Try किया तुमने कि मैं solve करूँ? Trying, wait. नहीं, कुछ हिंट दे दो ना मुझे. चलो कैसे करोगे, बिंदास बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं. गलत हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सी, गलतियां से वन कैन अंडरस्टैंड, डजंट मैटर. बिंदास आंसर करो. तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, कैसे शुरुआत करोगे यहाँ पे? हाँ मेरा, क्या करोगे? मैंने बोला सब्स्टिट्यूशन में तुम किसको सब्स्टिट्यूट करोगे, स्मॉलर पावर को या हायर पावर को? Smaller part. कहाँ से है? देखो ये तो तुम सुनते नहीं हो यार. अभी मैं क्या करूँ तुमका? मैं Sir, अगला actually, I was having today network issue a lot. I was getting exited again from the meeting. Okay, fine. Forget it. सर आंसर नहीं आ रहा है. सब्स्टिट्यूट मतलब वो थर्ड स्टेप में ही अटक गया. Let u is equal to 1 plus x square. ये हायर पावर. Differentiate both the sides with respect to x. So du by dx is differentiating 1 plus x square by dx. मुझे बताओ ये कितने जन ने किया है? How many of you have substituted 1 plus x Sir, square? I have done it. Raise your hand. I want to see hands raised. Yash has done it. Sham has done it. Kashish has done it. What about the rest of them? See, Om has done it. तो फिर आगे तुम्हें रुकना नहीं चाहिए था, तुम्हें आना चाहिए. रुका नहीं सर, रुका. Wait. Coming to it. अभी आंसर देखो. यहाँ पे du by dx, ये तो तुम्हारा u plus v मेथड होगा, तो डिफरेंशिएटिंग 1 by dx. अभी मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, छोटे बच्चों के हिसाब से मैं सॉल्व कर रहा हूँ. एकदम बेबी स्टेप्स ले रहा हूँ मैं, डायरेक्टली कुछ नहीं लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन हो चुका है. शायद मैं डायरेक्टली लिख सकता था, लेकिन अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ. प्लस डिफरेंशिएटिंग x square by dx, therefore du by dx will be equal to differentiating constant is always 0. Differentiating x square is 2 into x, therefore du by dx is equal to 2 into x into dx. Therefore what is du upon 2 is equal to x into dx. क्या ये क्लियर हुआ? यस सर, यहाँ तक आया, उसके बाद सॉल्व नहीं हुआ. हाँ, सॉल्व नहीं हुआ, सब्स्टिट्यूशन तो था. अभी देखो ना स्टूडेंट्स, ये देखो x into dx, क्या यहाँ पे भी तुम्हें x into dx नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ स्टूडेंट्स, तो x into dx की जगह पे क्या लिखोगे? du by 2. इसी के अगले प्रॉब्लम ने हमने du by 3 लिखा था,
वहां पे हमने भजन किया था या कीर्तन किया था, राम राम नहीं सर, हरे एक्चुअली कंफ्यूजन साइन में नहीं हुआ नहीं ना। नहीं 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 नहीं, रीजंस मत दो, सर रीजंस मत रीजन दो। नहीं, मैं आपको बता ध्यान रही से हूँ। ध्यान से अगर देखा होता और पहला वाला क्वेश्चन ध्यान में रखा होता तो अभी ये गड़बड़ नहीं होती। तो देखो x इंटू डी एक्स आ गया, x इंटू डी एक्स इज डी बाई टू। पीछे क्या लिखा है, साइन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, व्हाट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज u। अरे सर ये तो इजी हो गया, ये तो बहुत इजी हो गया अभी, विच इज इक्वल टू व्हाट। हाँ सर अभी मेरा प्रॉब्लम होगा साइन ऑफ u इंटू डी यू अपॉन टू। सर 1/2 तो कांस्टेंट है। अरे सर इसका तो फॉर्मूला मालूम है, व्हाट इज साइन ऑफ u इंटू डी यू, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन u, इंटीग्रेशन ऑफ साइन u विल बी माइनस कॉस u प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या ये फॉर्मूला नहीं मालूम तुम लोगों को, नहीं मालूम, या तुम्हें सिर्फ वही मालूम है कि sin x इंटू डी एक्स इज माइनस कॉस एक्स। स्टूडेंट्स ये एंगल से इट कैन बी u w थीटा फाई एनी अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकता है। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin अल्फा इंटू d अल्फा माइनस कॉस अल्फा। जरूरी थोड़ी है कि एंगल्स तुम्हारा एक ही एंगल होता है 30 डिग्रीज, इट कैन बी 30, इट कैन बी 29, इट कैन बी 13, इट कैन बी 45। तो integration of sin u into du is minus cos u. So what exactly answer is minus cos u. What is u? That is your answer. क्या ये क्लियर हुआ? यस सर। क्या मुझे बताओ रॉकेट साइंस था क्या ये? हाँ रॉकेट मैथ्स था, हाँ रॉकेट मैथ्स था स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैंने जब भी पहला वाला क्वेश्चन किया था मैंने तभी होल्ड किया, मैंने बोला कुछ भी पूछना है वापस पूछो, ध्यान रखो, हर एक स्टेप्स को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करो। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया, पैटर्न क्या थी, पैटर्न ऑफ सॉल्विंग क्या थी, सेम ही है, देयर इज नो चेंज इन पैटर्न, सिर्फ वहां पे मैंने एंगल डाल दिया, बस खत्म हो गई बात। ओके क्या मैं इसको एरेज कर सकता हूँ अभी? Can I erase this? Students, is this clear to यस all of सर। you? Anybody has any doubts to ask? इसके रिलेटेड कुछ पूछना है? अमीरा अभी अमीरा इसमें कुछ पूछना है तुम्हें? हाँ अमीरा, No, sir. anything? No, Okay, no. fine. समझ में आया? No, sir, just a second. Yes, Okay, sir. fine. Very good. थोड़ा ध्यान दे के करो यार, घाई मत करो, सिली मिस्टेक्स मत करो, थोड़ा सा सोचो ना। यही तो लर्निंग प्रोसेस है ना, अपने अपने ब्रेन्स को थोड़ा सा टीज करो स्टूडेंट्स। जितना ब्रेन्स को टीज करोगे उतना तुम निखर के बाहर आओगे स्टूडेंट्स। ऑलवेज ट्राई टू टीज योर ब्रेन्स। ओके क्या मैं इसको इरेज कर दूं स्टूडेंट्स? Can I Yes, erase sir. it? Okay, fine. Now let us go for the next question. Second question, same page number 34. So what exactly it is given to you? Integration of students. Sir, done with the second question. क्या बात है कशिश, अभी एकदम वापस गेम में आ रही है स्टूडेंट्स। कशिश अकेली गेम में आ रही है। What about anybody else who's in the game? Students, come on, who's in the game? Anybody else? Raise your hand. Kashish has raised hand for this question. Come on, Amira, Anju, Dhruv, Disha, Dishant, Chanvi, come on fast. Labdi, Mank, Unish तो सो गया है. Yash, Shyam, Sania is also not answering. Prachi, what about you, Prachi? Paneri, Om, Nilufer. Okay, चलो कशिश आंसर करो, कैसे करोगे? Sir, so here u is 1 plus x square. So we will differentiate 1 plus x square. Okay, so du by dx क्या हो जाएगा? Sir, d 1 plus x square upon dx. हाँ, so differentiating 1 will be 0 and differentiating x square क्या हो जाएगा? 2x. So sir, the Very answer
yes, u is equal to 2x into dx. yes. अब यहाँ पे तुम du by 2 लिखोगे नहीं, क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में तुम्हें पूरा मिल रहा है ना, ये देखो ना। Yes, sir. हाँ, now can you rewrite your problem? ये प्रॉब्लम को मैं रीराइट करता हूँ. So integration of this, so what exactly? 2x into dx, एक ही क्वेश्चन को वापस रीराइट लिखो. What is 2x into dx is? Du. Upon 1 plus x square क्या है? U. क्या बात है. What is integration of du upon u? LNU. LNU. Very, देखा u raised to -1 आया कि नहीं आया? Yes, Students, sir. formula holds true only for n for other values except for n equal to -1. ये देखो अभी अगर मैं u लिखूंगा तो u raised to -1 आ जाएगा. Students, हमने आगे सॉल्व किया था. What is integration of dx upon x? ln x. तो ये du upon du है, u है, तो क्या होगा? LNU. plus constant of integration. Yes. What is u? What is u? What is 1 u? plus x square. क्या बात है, अभी झांके कशिश एकदम फॉर्म में है. Can I write on this as log of 1 plus x square to the base of e plus c? Agreed? या Yes, तो तुम्हारा sir. भी आंसर होगा, या तो ये भी आंसर लिख सकते हो, है ना? और you can also write on 2.303 log of 1 plus x square to the base of 10 plus c, और ये भी आंसर हो सकता है. देखो 3 अलग वे से. क्या बात है. Clear, students? Yes, sir. Now the last concept, students. Last concept is, students, definite integrals का. एक लास्ट कंसेप्ट, स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा इजी है और इसका सिर्फ फॉर्मूला तुम्हें ध्यान में रखना है. डेफिनेट इंटीग्रल्स. डेफिनेट इंटीग्रल्स में है क्या? Students, if in case if I happen to go for definite integrals में, you'll be having limits. यहाँ पे और यहाँ पे limits होंगे. इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट. Students, ये डेफिनेट इंटीग्रल्स के लिए हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा. अब इसका मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना. अगर मैंने दिया स्टूडेंट्स, व्हाट इज x raised to n into dx? कैन यू टेल मी व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर x raised to n into dx? X raised to n plus 1 upon n plus 1. प्लस c. प्लस Plus c. लेकिन अगर यहाँ पे मैंने दिया है, ध्यान से सुना, यहाँ पे अगर मैंने लोअर लिमिट दिया है x is equal to a, and if I say x is equal to b, उसका मतलब my smaller value is a and the upper value is b. यानी मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा यहाँ पे. स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ x raised to n into dx, और जब ये लिमिट्स के साथ में दिया हो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो वो हो जाता है डेफिनेट इंटीग्रल्स. तुम्हारा फॉर्मूला वही रहेगा. ध्यान से सुनना, फॉर द टाइमिंग ये लिमिट्स को मत देखो. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x raised to n into dx? तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? x raised to n plus 1 upon n plus 1. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. फिर तुम क्या करो, स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो, और ये जो लिमिट यहाँ पे ना इंटीग्रेशन के नीचे और ऊपर, उसको तुम यहाँ पे डालो. x is equal to a, x is equal to b. क्या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा? नहीं आएगा. क्या इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. अभी यहाँ पे कांस्टेंट क्या है मुझे बताओ. यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? तो तुम बोलोगे सर n plus 1 कांस्टेंट है. हाँ या ना? Yes, sir. ये तो न्यूमेरिकल. सपोज अगर मैंने बोला था x स्क्वायर, तो 2 plus 1 upon 2 plus 1, 2 plus 1 क्या आता है? 3. कैन आई टेक 3 को बाहर तुम लेते थे, तो कैन आई राइट ऑन दिस एज 1 upon n plus 1? एग्रीड? Yes, sir. ब्रैकेट में क्या होगा? x raised to n plus 1, लोअर लिमिट इज a, अपर लिमिट इज b. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. अभी जब भी तुम लिमिट्स लिखते हो ना स्टूडेंट्स, ध्यान से रखना. अभी हम क्या करेंगे, हम x को सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट्स. सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा मालूम है? ऑलवेज अपर लिमिट को पहले डालना है माइनस द लोअर, बिकॉज वी नीड टू हैव अ वैल्यू. एक फाइनाइट वैल्यू चाहिए स्टूडेंट्स. ये डेफिनेट
इंटीग्रल है, एक डेफिनेट आंसर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1/n+1 वैसे रखता हूँ स्टूडेंट्स। नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट x एज अपर लिमिट इज b। तो x की जगह तुम क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, b डालोगे। b रेज़ टू क्या होगा, n+1। अपर लिमिट में से मैं किसको सेपरेट करूंगा, लोअर लिमिट, क्योंकि ये हायर वैल्यू होगी, ये स्मॉलर वैल्यू होगी, उन दोनों के बीच का मुझे आंसर चाहिए। तो पुट x as b, now put x as a. This becomes your final answer. This is what we call as definite integrals. So students, definite integrals is not different from indefinite. Indefinite में तुम्हारा final answer x raised to n+1 upon n+1 आता, हाँ या ना? Agreed? Plus constant of integration. लेकिन जैसे मैंने finite values दे दी, lower limit और upper limit, सिर्फ तुम्हें करना क्या है? सिर्फ तुम्हें करना क्या है? यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, माइनस फिर उसकी जो लोअर वैल्यू होगी उसको तुम सब्स्टिट्यूट करो। दिस x रिप्रेजेंट्स द लिमिट्स, रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? यस सर। अब एक सिंपल क्वेश्चन देखो, डांस लाइक स्टूडेंट्स, किसी के ऊपर हम एक सिंपल क्वेश्चन में साइमल्टेनियसली कर रहा हूं। ओके, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स। ओके सो द क्वेश्चन इज, सपोज अगर मैंने दिया तुम्हें स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन ऑफ y² into dy, मैंने ये दिया है, लोअर लिमिट मैंने दिया है 2, अपर लिमिट दिया है 3, भी तो मैंने ऐसे दिया इंटीग्रेट। ये जो 2 और 3 दिया उसका मतलब ये वैल्यू ऑफ y is 2 and the value of y is equal to 3, these are the limits। तो तुम सबसे पहले इस प्रॉब्लम को लिमिट्स के बिगर देखो, लिमिट्स के बिगर देखो तो तुम्हारा प्रीवियस फॉर्मूला आ गया x is to n का। स्टूडेंट्स व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ y² into dy? So y raised to 2 plus 1 upon 2 plus 1. ओके अभी देखो स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया, लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट इज 3। नाउ कैन आई से 2 + 1 3 बाहर आ जाएगा, Yes, sir. तो 1/3 बाहर आ गया। ब्रैकेट में क्या आएगा, y raised to 3, स्मॉलर लिमिट इज 2, अपर लिमिट इज 3 इज इक्वल टू 1/3। अभी तुम क्या करोगे, व्हाट्स द फॉर्मूला? सर x को आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, अपर लिमिट माइनस x को लोअर लिमिट। तुम्हारा अपर लिमिट क्या है, दिस इज योर अपर लिमिट, दिस इज योर लोअर लिमिट। कैन आई सब्स्टिट्यूट y is 3? हाँ स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes. 3 क्यूब आ जाएगा विद Yes. माइनस साइन, 2 क्यूब। देखो स्टूडेंट्स, मुझे वैल्यू मिल रही कि नहीं मिली, मुझे एक डेफिनेट वैल्यू मिली। क्या यहाँ पे मेरा वेरिएबल्स y आ रहा है वापस फाइनल आंसर में? नहीं, जो इनडेफिनेट में तुम्हें सिर्फ एक्सप्रेशन वापस आ रहा था, x में, y में, w में, सब में आ रहा था। लेकिन यहाँ पे देखो अभी तुम्हारा आंसर क्या होगा, सर 1/3 अपर लिमिट यानी 3 क्यूब इज हाउ मच, 27 माइनस 8। स्टूडेंट्स व्हाट इज 27 माइनस 8? 19. 19/3, दैट्स योर आंसर, खत्म हो गया। यानी इंटीग्रेशन ऑफ y² into dy, लोअर लिमिट इज 2, अपर लिमिट इज 3, आंसर इज 19/3। ये है डेफिनेट इंटीग्रल्स। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स सबको? यस सर। Yes, sir. Okay, next lectures will be continuing further ahead, and this hardly another half an hour will be completing with this. Okay, students, next lecture may will be trying to solve problems onto this, and we'll go with a new chapter. Students, और कौन सा चैप्टर तुम्हारा चालू है फिजिक्स में? Sir, अभी laws of motion चालू है. ओके तो हम अभी नेक्स्ट चैप्टर करेंगे काइनेमैटिक्स। ओके पहले Okay, sir. यस सर। पहले इसके प्रॉब्लम्स हम करेंगे, उसके बाद काइनेमैटिक्स। लेकिन स्टूडेंट्स अभी ध्यान से सुनना, ये वापस आज रिवाइज करना। इसके 100 एग्जांपल्स होंगे तो सब्स्टिट्यूशन के, और डेफिनेटली 100 एग्जांपल्स एक दफे देखना, और एक एफर्ट डालना प्रॉब्लम्स के फॉर्मूलाज और इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स के सारे फॉर्मूलाज लर्न करके लिखना, और एक पेपर ऐसा करना जहाँ पे तुम लेफ्ट हैंड साइड सारे डिफरेंशिएशन के इक्वेशन करोगे, राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन के इक्वेशन करोगे। ये सारे फॉर्मूलाज एक पेपर के ऊपर लिखकर स्टूडेंट्स उसको लैमिनेट करके अच्छी तरह से अपने स्टडी टेबल पे हमेशा रखना। 2.5 साल तक ये बहुत काम में आएगा। ये पूरे पेपर पे है, क्योंकि दे आर ऑल रिवर्स ऑफ ईच अदर। इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव। ओके, इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स?
So next lecture will be starting with a new topic, kinematics. Okay, students? Okay, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, bye. Bye, sir. Thank Bye, you, sir. sir. Sir, thank you, sir. So I'm wishing you the same. Chalo, bye.